welcome to my channel that is all about literature. So in this video we'll discuss a new poem, The Weathercock Points South by Amy Lowell. But before going to start this poem, I'm going to give brief introduction of the poem and the poet. So first of all, Amy Lowell was an American poet who won Pulitzer Prize for Poetry in 1926, and she is considered as the lesbian poet and who had relationship with actress Ada Doyle Russell in around 1912. And the one thing is that she has portrayed Doyle Russell in in her many poems like To Speak Together, The Artist, Madonna of the Evening Flowers, and the last one is The Weathercock Points South. So this poem is considered as erotic poem, or we can say lesbian poem. So this is all about Amy Lowell, and the one thing is that Amy Lowell coined a term polyphonic prose. पॉलीफोनिक प्रोज में ही उसने सारी की सारी अपनी जो पोएम्स है उनको लिखा है. पॉलीफोनिक प्रोज इज दैट वेयर लाइन्स ब्रेक ऑन द पेज सो दैट इट लुक्स लाइक प्रोज ऑन द पेज. कहने का मतलब है कि जो लाइन्स उसने पोएम्स की लिखी, जो सेंटेंसेस लिखे पेजेस पे, वो ऐसे लिखे कि वो कैसे लगे, प्रोज की तरह लगे मीन्स एक प्रोज स्टाइल में उसने पूरे के पूरे पोएम्स को लिखा और उसी को उसने नाम दिया पॉलीफोनिक. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट Amy Lowell is considered imagist poet because she had written many poems during imagist movement, and she was American, so that Ezra Pound sarcastically considered her imagist in American imagist movement. मीन्स जो एजरा पाउंड है उसने इमेजिस्ट मूवमेंट को जो अमेरिका में चल रहा था उसमें एमी लोवेल के नेम पे जो इमेजिस्ट मूवमेंट है उसको नेम दिया इमेजिस्ट. Because Ezra Pound was not happy with Amy Lowell's poems, so he considered it as imagist movement or imagist literature in America. I hope you understood this one. So now we come to the poem. So poem was published first in Vanity Fair in 1919 as the title was Weather Vane Points South. यहाँ पे वेदर कोक की जगह वीन नाम दिया. एंड अगेन शी पब्लिश दिस पोएम इन पिक्चर ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, और जिसमें उसने नाम दिया द वेदर कोक पॉइंट साउथ. जो रियल नेम है अब जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो उसने नेम दिया था द पिक्चर ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, जहाँ पे वेन को रिमूव करके उसने कोक यूज़ किया. सो दिस इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम. And the thing is that this poem is considered as erotic poem or lesbian poem because Amy Lowell has written lesbian poems. So here we see that what is this poem all about. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट वेदरकॉक मीन्स होता है जो डायरेक्शन बताता है, हवा की डायरेक्शन या एयर की डायरेक्शन, कहाँ से हवा आ रही है वो जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसको नेम दिया वेदरकॉक. और यहाँ पे वेदरकॉक अपने आप को, पोएट ने अपने आप को कंसिडर किया. मीन्स जैसे जॉन डन ने अपने आप को कैंपस यूज़ किया था और लवर है उसके अराउंड घूमता है, वैसे ही वेदरकॉक एमी लोवेल ने अपने लिए यूज़ किया है. जो लवर है मीन्स कौन है यहाँ पे, एडा डॉयर रसेल, उसकी जो लवर है उसको लेके उसने इस पोएम को लिखा है या फिर राइट डाउन किया है. सो द थिंग इज़ दैट आई विल गिव सम मोर इंट्रोडक्शन और सम मोर थ्योरीज और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम इज़ दैट कि ये सेलिब्रेशन है. ये पोएम किस बारे में, सेलिब्रेशन ऑफ लेस्बियन डिवोशन, जहाँ पे डिस्क्राइब किया, शी डिस्क्राइब्ड द इंटीमेसी ऑफ हर एंड हर लवर थ्रू द बॉडी एंड स्पिरिट. यहाँ पे मेन थिंग इज बॉडी एंड स्पिरिट. Guys, I want to say one thing that it is very complex poem, we can say, even though it is
it is that it looks like very simple, but it is very complex because it is a erotic poem, and you can allegorize this poem by imagining, or because it is a imagist poetry or imagist poem, so that you have to imagine one flower with female, because Amy Lowell has given here flower, one flower, describe one flower, and flower is symbolized as female, and because flower is considered as soft, sweet and beautiful, like that female is considered as also soft, beautiful and kind hearted, we can say, or जो फ्लावर है उसकी जो लीव्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, उसको उसने डिस्क्राइब किया एज अ फीमेल जेनिटल पार्ट्स. सो दिस इज़ little bit complex or little bit cozy poem, we can see. सो स्टार्ट विद द थिंग दैट कि यहाँ पे लीव्स है वो एलेगोरिकल मीनिंग है. एलेगोरिकल इस तरीके से है कि यहाँ पे टू मीनिंग्स निकल रही है. फर्स्ट मीनिंग इज़ दैट इमोशंस कैसे, लाइक स्टबर्ननेस, या फिर वो जो क्या करती हो, गिव इन टू फैंटेसीज, जो फैंटेसीज की बातें करती हो. और सेकेंड मीनिंग है विमेन की बॉडी पार्ट्स का यहाँ पे. और मोस्ट ऑफ द पोएम्स जो एमी लॉवेल की है वो कंसीडर होती है हयाकू उसने यूज़ किया है एमी लॉवेल ने अपनी बहुत सारी पोएम्स में. हयाकू वो है जहाँ पे 3 लाइन्स होती है और जहाँ पे 5 सिलेबल्स होते हैं. सो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे कुछ सिम्बल्स यूज किए हैं, जैसे फ्लावर, बर्ड, सेवरल सेंसेस और टच. यहाँ पे फ्लावर जो बर्ड है उसको फीमेल जेनिटल्स यूज़ किया है, और यहाँ पे जो फ्लावर यूज़ किया है वो लिलैक प्लांट का, lilac plant. You can search on Google and you can see that what kind of lilac plant is. So lilac plant is the flower of lilac plant is whitish and purplish flowers. So we'll see one more things when I will describe this poem. So this line is that I put your leaves aside. मैंने क्या किया, तुम्हारे लीव्स को असाइड, अलग कर दिया, बाहर कर दिया. कहने का मतलब है कि जो तुम्हारे इमोशंस है उसको मैंने हटा दिया, मीन्स थोड़ी थोड़ी रिमूव कर दिया, क्योंकि तुम में क्या स्टबर्ननेस है, और उस स्टबर्ननेस को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या कर दिया, उन चीज़ों को हटा दिया वन बाय वन. लाइक एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसकी लीव्स हटाती गई, और जब जब आप लीव्स को हटाएंगे, इसके जो परत है उसको हटाएंगे, मीन्स हर एक लीव्स को, तो अंदर क्या मिलेगा, बर्ड मिलेगा, वो जो सॉफ्ट होगा, जो प्योरिटी को डिस्क्राइब करेगा. तो वहीं यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे फ्लावर यूज़ किया है, वो क्या है, सेंटर है किसका, लवर की बॉडी का, और खुद के लिए यूज किया है फ्लावर. तो यहाँ पे द स्टिफ ब्रॉड लीव्स, और वो लीव्स कैसी है, स्टिफ है. स्टिफ में बहुत ज़्यादा हार्ड है, ब्रॉड लीव्स और बहुत ज़्यादा चौड़ी है, द स्मॉलर वंस, और वहीं पे क्या, स्मॉलर वंस. अब यहाँ पे एलेगोराइज ये है कि जो बाहर से तुम कैसे दिखती हो, एडवर्ड और रसल के लिए बोल रहे कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड हो, लोग तुम्हें समझने में बहुत भूल करते हैं, लेकिन तुम अंदर से कितनी हो, स्मॉलर. जो तुम अंदर से, तुम्हारा जो हार्ट है वो स्मॉल है, लेकिन वो कैसा है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो उसको ही यहाँ पे डिस्क्राइब किया है पोएट ने. प्लीजेंट टू टच, वेन्ड विद पर्पल. तुम्हें टच करने पे क्या होता है, प्लीजेंट, बहुत खुशी मिलती है, या फिर तुम्हारे साथ में जो मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एवर. वेन्ड विद पर्पल, यहाँ पे वेन्स मीन्स जो तुम्हारे टच करने पे तुम्हारी जो वेन्स दिखाई देते हैं, जो पर्पलिश कलर है, उसको डिस्क्राइब किया है. लेकिन अगर हम देखें फ्लावर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिलैक जो फ्लावर है उसके बारे में बोला, जो कैसे दिखता है, पर्पलिश कलर. अब जो फ्लावर है लिलैक,
वो भी क्या है, एलोगराइज है, सिम्बलाइज्ड है, मीन्स इसलिए है क्योंकि जो लिलैक जो प्लांट है वो किसको शो करता है, प्योरिटी एंड इनोसेंस को। और ये बात है कि अमेरिकन जो लिटरेचर है या फिर अमेरिका है उसमें जो लिलैक प्लांट है उसको क्या है, ऑफिशियल स्टेट फ्लावर का दर्जा है। कहाँ पे, न्यू हैम्पशायर में, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, हार्डी नेचर को, मीन्स जो कठोर नेचर है लेकिन अंदर से कैसा, सॉफ्ट है। और जो सिंबलाइज करता है किसको, स्प्रिंग और रिन्यूअल को। लाइक जो रसेल है वो भी वैसी है क्योंकि वो भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा रिन्यूअल, मीन्स उसको बहुत फ्रेशनेस मिलती है जब भी वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। और यहाँ पे बात ये है कि जो लिलैक जो प्लांट है उसके भी जो कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर है, वो सिंबलाइज करते हैं अलग अलग। जैसे मेजेंटा कलर है, उसमें मेजेंटा कलर भी आएगा। मेजेंटा कलर शो करता है लव एंड पैशन को, और वहीं पे वॉयलेट या फिर पर्पलिस है वो कलर किसको शो करता है, स्पिरिचुअलिटी को। यहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी से भी ले सकते हैं, जैसे जो लोवेल एंड जो डॉयर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, और उसको ही यहाँ पे शो किया, बॉडी प्लस स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। द ग्लेज्ड इनर लीव्स, लेकिन तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा सॉफ्ट हार्ट है या फिर तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी है वो कैसी है, ग्लेज्ड है, मीन्स बहुत चमक है उसमें, रिफल्जेंट है, मीन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इनरनेस, तुम अंदर से बहुत ब्यूटीफुल हो, यहाँ पे वही शो कर रही है पोएट। वन बाय वन पार्टेड यू फ्रॉम योर लीव्स, मैंने क्या किया, अगेन एंड अगेन तुम्हें पार्ट किया, तुम्हारे लीव्स से अलग किया। कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो हार्डनेस है या फिर तुम्हारा रूडनेस है, मैंने उसको अलग करके देखा कि तुम कितनी सॉफ्ट हो। बाहर से सब लोगों को तुम बहुत अजीब लगती हो, लेकिन मुझे तुम क्या लगती हो, बहुत ब्यूटीफुल लगती हो, बहुत प्योर हार्टेड लगती हो। अनटिल यू स्टूड अप लाइक अ वाइट फ्लावर, मीन्स तुम्हारे साथ मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया उसमें मैंने ये जाना कि तुम कैसी हो, एक वाइट फ्लावर की तरह हो। वाइट फ्लावर किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को या फिर इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है, वहीं यहाँ पे शो किया है पोएट ने। और लिलैक जो प्लांट यहाँ पे पोएट ने शो किया है वो भी सिंबलाइज किसको करता है, फर्स्ट लव को। अगर आप अमेरिकन लिटरेचर या अमेरिकन कल्चर में देखो तो लिलैक जो फ्लावर है वो उनको दिया जाता है जो उसका फर्स्ट लवर हो या फिर फर्स्ट लव हो। तो यहाँ पे भी एमी लोवेल ने सिंबलाइज किया लिलैक को कि तुम मेरे लिए क्या हो, रसेल के लिए बोला है कि तुम मेरे लिए एक फर्स्ट लव हो जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। स्वेइंग स्लाइटली इन द इवनिंग विंड, और जो क्या है वो वाइट फ्लावर जो क्या करता है, स्वे करता है, मीन्स थोड़ा थोड़ा झूलता है या फिर इतना प्लेजेंट फील करता है किसमें, इवनिंग विंड। या इवनिंग विंड से मतलब है फ्लावर के लिए तो इवनिंग विंड है, लेकिन यहाँ खुद के लिए यूज किया, मीन्स एमी लोवेल खुद यहाँ पे इवनिंग विंड को रिप्रेजेंट कर रही है कि तुम मेरे साथ होने पे तुम क्या करती हो, बहुत प्लीजेंट फील करती हो। वाइट फ्लावर, तुम क्या हो, वाइट फ्लावर मीन्स इनोसेंस और तुम प्योर हो। फ्लावर ऑफ वैक्स, तुम कैसी हो, वैक्स की तरह हो। तुम्हारे जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, वैक्स की तरह। वैक्स क्या है, मोम कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है वैसे। ऑफ जेड, जेड मतलब जेम स्टोन भी बोल सकते हैं या फिर वो ज़्यादा थके हुए या टायर्ड होते हैं उसको भी बोल सकते हैं। ऑफ अनस्ट्रिक्ट एजेड, लेकिन क्या है उन पे अनस्ट्रिक्ट एजेड, अनस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिसमें कोई निशान नहीं है, या फिर तुम मेरे साथ होती हो तो इवन दो यू आर टायर्ड बट यू डोंट फील दैट थिंग, कि तुम ऐसा नहीं लगता कि तुम थकी हुई हो या तुम टायर्ड हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी मार्क नहीं होते थकान के। एजेड का मीन्स तुम एक जेम स्टोन हो, वो जेम स्टोन जो कैसा हो, जो वोल्केनो से निकला हुआ हो या जो चमकदार हो वैसी लगती हो, मीन्स तुम्हारे अंदर वो चमक आ जाती है। फ्लावर विद सरफेसेस ऑफ आइस, और आइस, आइस कैसी होती है, वाइट कलर में होती है। तो तुम्हारे फ्लावर मीन्स तुम कैसी हो, तुम्हारा सरफेस बाहर से एकदम प्योर है, वाइटिस है, जैसे एक लिलैक का फ्लावर हो वैसे। लिलैक के फ्लावर में भी कैसे होते हैं, टू कलर होते हैं, वाइट एंड पर्पल, विद शेडोज फेंटली क्रिम्सन। लेकिन तुम्हारी जो शेडोज है फेंटली मीन्स बहुत
धुंधला सा या फिर नेबुलस है। क्रिम्सन मीन्स जो बहुत ज़्यादा रेडिश कलर हो, डार्क रेड भी बोल सकते हैं, जिसको मैजेंटा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैजेंटा कलर का मतलब है जो तुम्हें क्या है, लव और पैशन है, तुम वैसी ही हो। वेयर इन ऑल द गार्डन इज देयर सच अ फ्लावर। यहाँ गार्डन रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड को, इस दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये गार्डन, कि इस गार्डन में यहाँ पे तुम्हारे जैसा और फ्लावर कौन है, कोई नहीं है तुम्हारे जैसा, मीन्स यू आर द यूनिक वन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रही है पोएट कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। द स्टार्स क्राउड थ्रू द लिलैक लीव्स। और जिस जो तुम यूनिक हो, तुम्हारे आसपास में क्या आ जाते, स्टार्स की क्राउड आ जाती थ्रू द लिलैक लीव्स, कि तुम कैसे हो। लिलैक लीव्स को देखा होगा, लिलैक की जो लीव्स होती है वो बहुत एक गुच्छे में होती है, वैसे ही तुम होती हो और तुम्हारे पास में आती है और तुम्हारी तरफ देखती है। जैसे आप मूवीज़ के सॉन्ग सुनते होंगे या फिर कोई ऐसा जो एग्जेजरेट करता है कि तुम्हारी आंखें तो, तुम्हारी आइज़ तो इतनी ब्यूटीफुल है, या फिर इतना एग्जेजरेशन होता है। यहाँ पे वही सेम थिंग है कि स्टार क्राउड्स है वो भी तुम्हारी तरफ देखती है, तुम्हारी ब्यूटी की तरफ देखते हैं, और वो भी क्या हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं तुम्हारी ब्यूटी और तुम्हारी सॉफ्टनेस या तुम्हारी प्योरिटी के सामने। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। देन द लो मून ब्राइटन्स यू विथ सिल्वर। और जो मून है, जैसे मून को रिप्रेजेंट किया जाता है ब्यूटी से, लव से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस मून को बोल रहा है कि जो मून है, जो लव है, वो भी, उसका लव भी तुम्हारे सामने क्या हो जाता है, फीका हो जाता है, या फिर तुम्हें ब्राइटन कर देता है वो जो लव है। लो मीन्स बहुत नीचे जो तुम्हारी तरफ देख रहा है, लुक एट यू है ना, वहाँ पे कि तुम्हारी तरफ देख, ब्राइटन्स में तुम में चमक पैदा कर देता है एज ए सिल्वर, मीन्स एक सिल्वरिश कलर में। द बर्ड इज़ मोर देन द कैलेक्स। यहाँ पे कहने का मतलब कि जो बर्ड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर ज़्यादा उपयोग में आती है, यूज़ में आती है, किसकी बजाय, कैलिक्स। मीन्स हर कोई किसको देखना पसंद करता है, बर्ड को। कैलिक्स होता है जो सेपल होती है जो ग्रीन कलर में, मीन्स जो लीव्स का गुच्छा होता है उसको कैलिक्स बोला जाता है। पत्ते होते ग्रीनिश कलर में, उसको उसको कोई नहीं देखता, किसको देखते हैं, सब बर्ड को देखते हैं कि तुम क्या हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मुझसे ज़्यादा तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। देर इज़ नथिंग टू इक्वल अ वाइट वर्ड। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे इक्वल हो। वाइट वर्ड मीन्स तुम्हारे जो बॉडी पार्ट है, या फिर तुम खुद हो, तुम्हारी जो स्पिरिचुअलिटी है, उसके इक्वल कुछ नहीं है। ऑफ नो कलर, जिसका शायद कोई कलर नहीं है, क्योंकि वाइट ऐसा कलर है जिसमें हर एक चीज़ मिक्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि वाइट इतना प्योर है कि हर एक जो प्योरिटी को सिंबलाइज करते हैं उन सब में वाइट का ही यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि चर्च होते हैं, चर्च के जो पोप होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, वो कैसे कलर पहनना पसंद करते हैं, वाइट कलर। और यहाँ पे अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी जितने भी सेंट्स हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, दे वांट टू वियर वाइटिश कलर। एंड वाइट कलर आप अगर फ्लैग में भी देखोगे तो वहाँ पे भी किसको शो करते हैं, प्योरिटी को। तो यहाँ पे उस वाइट में सब के सब मिक्स हो जाते हैं। वैसे ही क्या है, तुम्हारा कोई कलर नहीं है, क्योंकि तुम सब में मिक्स हो जाती है, तुम मेरे साथ हो। एंड ऑफ ऑल बर्निश बाय मून नाइट, कि तुम में एक चमक है, तुम में वो यंगरनेस है, या फिर तुम इतनी ज़्यादा प्योर हो किसकी वजह से, मून लाइट की वजह से। यहाँ पे मून लाइट भी सिंबलाइज कर रहा है एमी लॉवेल का, कि तुम मेरे साथ रहती हो, तुम बहुत ज़्यादा चमक उठती हो, या तुम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हो। थ्रस्ट अपॉन बाय ए सॉफ्टी स्विंगिंग विंड। और जो क्या करती है, थ्रस्ट अपॉन का मतलब फोर्सफुली, या फिर वो जो बर्ड होता है, फ्लावर बर्ड होता है, वो क्या करता है, स्विंग कर जाता है किस पे, हवा की विंड से। वैसे ही थ्रस्ट अपॉन मीन्स तुम पे जितना भी थ्रस्ट किया, या फिर जितना भी ज़्यादा मैंने तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड किया है, उन सब में तुम क्या कर जाती हो, झूल जाती हो, फ्रेश फील करती हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ आई विल गिव सम मोर इंट्रोडक्शन इज दैट, कि फ्लावर है यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया है कि फ्लावर गेन सम मेजेस्टी एंड स्प्लेंडर दैट कोज द स्टार्स एंड मून टू गेज एंड इवन विद वंडर।
मोर वंडर। यहाँ पे फ्लावर को विमेन की ब्यूटी से एसोसिएट किया है। वहीं पे वाइट किसको एसोसिएट कर रहा है, मून को एसोसिएट कर रहा है, या फिर किसको, पोएट को एसोसिएट कर रहा है, किसके साथ में, विंड के। ये विंड है, इसके साथ एसोसिएट कर रहा है किसको, जो पोएट है वो खुद अपने आप को एसोसिएट कर रही है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे कुछ साउंड यूज हुई है, जैसे इम्प्लीकेशंस है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है कि ये क्या इम्प्लीकेशन है। जहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या है, इमेजरी ये है इवनिंग विंड। आप अगर इमेजिन करो इवनिंग विंड को और वाइट फ्लावर को, तो आप इमेजिन कर सकते हो, या फिर लवर को उसके लवर के साथ में, उसके बिलवर्ड के साथ में आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना ज़्यादा फ्रेश फील करता है। दैट इज, यहाँ पे एक आपको अजीब सी स्मेल जो इमेजिन कर सकते हो, सेंट, वाइट फ्लावर का सेंट। और अदर थिंग इज़ दैट कि फ्लावर जो बर्ड है वो फीमेल जेनिटल्स को यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे मैंने वो सारी बातें यूज़ नहीं की है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। और बहुत सारी इमेजरी है, वो क्या है, सेवरल सेंसेस है, जैसे ब्रॉड हो गया, स्मॉलर, पर्पल, टच। यहाँ पे टच क्या है, स्टिफ, प्लेजेंट, ग्लेज्ड। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की है पोएट ने। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट फॉर दिस poem. So if you have any query regarding this poem or another poem, you can comment in comment section. Subscribe my channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get notification, and share with your friends and family members. Till then, bye, have a nice day.